Hello everyone, my name is Rajesh Kumar Mahapatra. I am from Skill Development Institute, Bhubaneswar. Today in this video we are going to discuss about the generation of AC. In this topic we are going to cover the introduction of AC and the generation of AC. You see, the full form of AC is alternating current. अल्टरनेटिंग का मतलब ये है कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी आर चेंजेस, यानी एसी क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। अभी इसमें एसी क्वांटिटीज क्या क्या आते हैं? इसमें दो एसी क्वांटिटीज आते हैं, एक होता है वोल्टेज और एक होता है करंट। द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमारा अल्टरनेटिंग करंट या फिर पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है या फिर जीरो में भी हो सकता है। तो फाइनली एसी करंट का डेफिनेशन ये बनता है, द करंट दैट चेंजेस इट्स पोलरिटी इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट। और अगर हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो उसका डेफिनेशन ये बनता है, the alternating quantity is defined as the one which changes its value as well as direction with respect to time. अब हम देखेंगे generation of AC. According to the Faraday's laws, whenever flux linking with a conductor changes, an EMF is induced across it. The amount of EMF induced depends on rate of change of flux. यानी जब कभी भी कंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स चेंजेस होता है तो कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट भी होता है और ये ईएमएफ का वैल्यू उतना ही रहेगा जितना फ्लक्स चेंजेस होगा। सो ए वोल्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग ए कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड और बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कीपिंग द कॉइल स्टेशनरी। अगर वोल्टेज को प्रोड्यूस करना है तो कोई भी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रोटेट करते हैं या फिर हम कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारा वोल्टेज इंड्यूस्ड हो सकता है। आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसपे एक जनरेटर से कैसे एसी को जनरेट किया जाता है, कैसे एसी जनरेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। उसके बाद हम डिटेल्स में मैथमेटिकल डेरिवेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा सिनुसॉइडल वेव फॉर्म कैसे जनरेट होते हैं। In this module, you will learn about an AC generator. An AC generator is an electric generator that converts mechanical energy to electrical energy in the form of an alternating EMF or alternating current. Working principle of an AC generator. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, when there is a relative motion between a coil and a magnetic field, an electric current or EMF is induced in the coil. Parts of an AC generator. An AC generator has an armature ABCD. It is a rectangular coil with many turns wound around a soft iron core. A shaft, it can be rotated rapidly. A field magnet, it may be a strong permanent magnet with concave poles. Two slip rings S1 and S2. These are connected to the armature and thus rotate with it. Two brushes B1 and B2. They provide electrical contact with the slip rings and a load, which may be a galvanometer as shown. Working of an AC generator. When the armature rotates between the poles of the field magnet, the magnetic flux linked with the armature changes continuously. As a result, an EMF is induced in the armature. This in turn produces an electric current through the armature and the galvanometer and through the slip rings and the brushes. Note,
that the galvanometer needle swings between the negative and positive values. This means that an alternating current is flowing through the galvanometer. Direction of induced current. Initially, the armature ABCD is vertical with its arm AB up and CD down. The direction of magnetic field is from left to right. As the armature undergoes a half rotation clockwise, arm AB moves down while arm CD moves up. According to Fleming's right-hand rule, the current will flow in the direction DCBA. So, the current will flow from B1 to B2 through the galvanometer. Now during the next half rotation, arm AB moves up while arm CD moves down. Again by Fleming's right-hand rule, current will flow in the direction ABCD, that is, from B2 to B1 through the galvanometer. Thus, the induced current changes its direction every half rotation. Graphical representation of induced EMF. Suppose the armature takes t seconds to complete one rotation clockwise. At time t is equal to 0 second, the armature ABCD is vertical with arm AB up and arm CD down. At this position, when the armature rotates, the rate of change of magnetic flux is momentarily zero. Hence, the induced EMF at this position is zero. During the first quarter rotation, the induced EMF increases. Then, at time t upon 4 seconds, the armature becomes horizontal. At this position, the rate of change of magnetic flux momentarily attains the maximum value. Therefore, the induced EMF at this position is maximum. During the second quarter rotation, the induced EMF decreases. Then, at time t upon 2, the armature again becomes vertical and therefore the induced EMF is zero. During the third quarter rotation, the induced EMF increases but has an opposite polarity as compared to that of the first half rotation. At time 3t upon 4 seconds, the induced EMF attains its maximum negative value. During the fourth quarter rotation, the induced EMF decreases and becomes zero momentarily at time t seconds, as the armature is vertical once again. So the magnitude of the induced EMF is sinusoidal. मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको समझने के लिए एक डायग्राम आपके सामने है। तो let us consider that a coil having n number of turns is rotating in a uniform magnetic field at an angular velocity of omega radian per second. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कॉइल लिया जाता है, जो कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाता है। इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो कॉइल को मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रोटेट करने से कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है और कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉइल का पोजीशन हम XX पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। It starts from initial position of XX and rotated by an angle theta in time t second in anti-clockwise direction. So here theta is equals to omega t. Omega is called as the angular velocity and t is the time period. मतलब यहाँ पे कॉइल XX पोजीशन से अपना रोटेशन स्टार्ट किया है और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और वो t टाइम पे थीटा डिग्री का एंगल वो कवर कर रहा है।
इसीलिए यहाँ पे एक रिलेशन बन गया कि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। एट दिस इंस्टेंट फ्लक्स परपेंडिकुलर टू द कॉइल इज phi m cos omega t, where phi m is the maximum possible flux. So by Faraday's laws, E equals to minus n d phi by dt. सेमली उसी को अगर हम और थोड़ा एलाबरेट करते हैं, E इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी फाई एम कॉस ओमेगा टी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमारा बनता है कि E इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वी एम हम कांस्टेंट लिए हैं, वेयर वी एम इक्वल्स टू एन फाई एम ओमेगा विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वी हैव कंसिडर्ड। तो हमें ये समझ में आता है कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो हमारा साइन ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड करता है। माने कि जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है तो वहाँ पे एंगल चेंज होने के साथ साथ हमारा वोल्टेज का रेंज भी चेंज होता रहता है। इसीलिए इस वोल्टेज को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज देयरफॉर नोन एज साइनोसॉइडल ईएमएफ। अभी देखिए E इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी जो हमने यहाँ पे निकाले हैं, तो इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि E इक्वल्स टू वी एम साइन थीटा, यानी कि हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। अभी हम क्या करेंगे, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड में जो रोटेशंस होंगे सो हर एक एंगल को हम कंसीडर करेंगे और देखेंगे हमारा वेव फॉर्म कैसे आता है। नाउ लेट take the theta value equals to 0. Now we know that E equals to Vm sin theta. So अगर sin theta के जगह पे theta का वैल्यू अगर 0 होता है तो E का वैल्यू मतलब वोल्टेज का वैल्यू भी यहाँ पे 0 होता है। सिमिलरली थीटा का वैल्यू जब 30 डिग्री होता है तो वोल्टेज का वैल्यू E इक्वल्स टू वी एम साइन 30 विच इज इक्वल्स टू वी एम इंटू 0.5। हमारा साइन 30 का वैल्यू जो 0.5 है वही रहता है। Similarly, when theta is equals to 60 degree, then E equals to Vm sin 60, which is equals to Vm into 0.866, that is a value of sin 60. Now, when theta equals to 90 degree, then E equals to Vm sin 90, which is equals to sin 90 means it is the value is 1, so Vm into 1. नाउ अभी आप लोग देखो जो वोल्टेज का रेंज यहाँ पे चेंज हो रहा है ये डिग्री के हिसाब से हमारा वोल्टेज का रेंज चेंज होता जाता है, डिग्री ऑफ एंगल के हिसाब से। यानी कि पहला जब हमारा डिग्री जब 30 डिग्री पे था तो हमारा एक वैल्यू निकलता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है 0.5, यानी कि हमारा 90 डिग्री में जो वैल्यू मिलता है Vm इंटू 1, सो दिस वैल्यू इज मैक्सिमम वोल्टेज रेंज with respect to the 30 degree angle of voltage. Similarly, ये जब 120 डिग्री में जाते हैं, ये कॉइल जब 120 डिग्री में जाएगा तो E इक्वल्स टू वी एम इंटू 0.866। ऐसे करके अगर हर एक एंगल को 30-30 डिग्री हम डिफरेंट एंगल को लेते चलेंगे तो फाइनली थीटा जब 360 डिग्री में पहुंचेगा तब वोल्टेज का रेंज E इक्वल्स टू वी एम इंटू 0 वो अभी 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा कॉइल जो XX पोजीशन से स्टार्ट हुआ था वही XX पोजीशन में आके रुक गया है। तो इसके हिसाब से ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, जो साइनसॉइडल वेव फॉर्म यहाँ पे बनता है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिया गया है ये आपका होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेंज। मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज ये होता है मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज। Hence, the voltage produced will depend on the value of sin omega t and the curve obtained for different values of theta is a sine curve. तो अब हमें पता चला कि यहाँ पे साइन कर्व कैसे निकलता है। अभी ये फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है कि E इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो कि हम उसको कन्वर्सन भी किए थे, E इक्वल्स टू वी एम साइन थीटा। सो E इक्वल्स टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, E इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। हमें पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो यहाँ पे बनता है E इक्वल्स टू वी एम साइन 2 पाई एफ टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जो करंट फ्लो होगा
वो करंट भी हमारा अल्टरनेटिंग होगा, जो कि हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं I equals to Im sin omega t which is plus or minus 5। यहाँ पे Im लिखा है तो मैक्सिमम करंट होता है और phi होता है जो कि फेज एंगल होता है। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है इसीलिए कि करंट वोल्टेज को या तो लीड करेगा या तो लैग करेगा या तो सेम फेज में रहेगा, डिपेंड करता है लोड कंडीशंस के ऊपर। वैसे करंट वोल्टेज को लीड करना, लैग करना या फिर सेम फेज में रहना, इसके बारे में हम लोग एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।